In previous lecture, we have discussed about the conformations, whether the conformations were related with the ethane or conformations were related with the butane. So conformation and Newman projections, they are very easy to draw. How to draw them? I am not going to draw, it is only a computer drawing. So see what you have to do. First draw a circle. This is the first circle that represents a carbon atom. Then join one hydrogen to it, join another hydrogen to it, join another hydrogen to it. So these are the three hydrogens which are joined to a carbon atom. So it represents a CH3 unit. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? CH3 यूनिट को. Then draw another carbon atom which is present at the center. Bond between these two carbons, they are not being shown. Then draw another line which join with this central carbon atom. Draw another line which joins with the again central carbon atom. Now draw another line which joins with the this carbon atom. So by this way you are able to draw the conformations of the either butane or ethane. So that is the simple way to draw. I will try to draw the conformation by hand later on in another example. So that was about to draw the conformations of the ethane or butane. Now let us discuss what we have discussed in the previous lectures. So that is the butane, this molecule. So first carbon atom, second, third and fourth. So it is C4H10. I want to change it into conformations. So same structure, it is little bit changed or drawn in a different way, which is shown below the above structure. Then I will change it into Newman projections for the second and third carbon atom. So that is the Newman projection simply shown here, not clear Newman, but it is a halfway to convert into the Newman. So CH3 एक ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये फर्स्ट कार्बन एटम है. So this is the CH3, that is carbon, it is CH2, joined by bond another carbon, it is CH2, and that is the CH3. So in this way this is a midway to the Newman projection, and now I am going to change it into the clear Newman projection. So this is one of the conformations for the butane. If you clearly look at this conformation, the upper one carbon atom which is not shown by any dot here, which is present at the center, मैं अगर आपको बताना चाहूँ यहाँ पर, तो ये जो सेंटर है, ये जहां तीन लाइन मीट कर रही हैं, दैट इज ए वन कार्बन एटम. दिस बिगर सर्कल बिहाइंड इट इज अनदर कार्बन एटम. तो पीछे CH3 ये आ गया, इसके साथ दो हाइड्रोजन लगी हैं तो CH2 यूनिट हो गया. फिर ये कार्बन, ये दो हाइड्रोजन लगी हैं तो CH2 यूनिट हो गया, यहां पर CH3 आ गया. तो जैसे आप इसको 60 डिग्री से रोटेट करते हो, पार्सली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन आपके पास आती है. अनदर 60 डिग्री रोटेट करते हो तो आपके पास गॉज कंफर्मेशन आती है. गॉज कंफर्मेशन में CH3 और CH3 यूनिट जो वो काफी नियर बाई है. ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. एक मॉडल के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से गॉज कंफर्मेशन जो है वो बनती है. इफ यू फर्दर रोटेट इट, देन वी आर गेटिंग दिस कंफर्मेशन. इट इज CH3 behind CH3, H behind H. This conformation is known as fully eclipsed conformation. क्या बोलते हैं इसको? Clearly eclipsed conformation है, fully eclipsed conformation है. If you further rotate it, then again CH3 and CH3 unit, they become 60 degree apart, and this is a gauge conformation. तो gauge conformation पहले ऊपर भी डिस्कशन में आई है. That is the gauge conformation, CH3 and CH3 unit 60 degree apart. It is again the gauge conformation which is 60 and 60 degree apart from each other, each CH3 group. Further you rotate, you change it into a partially eclipsed conformation, and further rotation you will get the anti conformation at the last.
तो जैसे जैसे आप रोटेट करते जाते हो तो कन्फर्मेशंस आपके पास जो एंटी, एक पार्सली एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड और गॉज कन्फर्मेशन जो इसमें बनती है। मोस्टली एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ड्रॉ ऑल द कन्फर्मेशंस ऑफ द ब्यूटेन। काफी बार जो एग्जाम में ये कन्फर्मेशंस जो पूछी गई हैं, तो आपने इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से कन्फर्मेशंस को जो वो ड्रॉ किया गया है। एक और एक्सटेंशन है, दैट इज एक्सटेंशन रिगार्डिंग द कन्फर्मेशंस ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का आज तक एग्जाम्पल वैसे बुक में तो है, उसने डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर उसने नहीं पूछा है। अगर साइक्लोहेक्सेन मैंने ड्रॉ करनी हो तो एक बेंजीन के रिंग की तरह ड्रॉ कर दूंगा, बीच में सर्कल ड्रॉ नहीं करूंगा। ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर बना रखी है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ईच यूनिट इज CH2 यूनिट। इफ यू नॉट फॉलोइंग दिस, सी दिस वन, दैट इज साइक्लोहेक्सेन C6H12। हर एक यूनिट जो वो CH2 है और 6 कार्बन एटम और 12 इसमें हाइड्रोजन है, तो उसको बोलेंगे हम C6H12, दैट इज द साइक्लोहेक्सेन। बट इफ यू डोंट ड्रॉ दिस, ओनली ड्रॉ द लाइन्स, देन दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की है साइक्लोहेक्सेन की, ये केवल कन्वीनियंस के तौर पर प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इट इज ए 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एक्चुअल में कार्बन जो वो टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल होने की वजह से जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं आ सकती है इसकी। दैट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू ए प्लेन ऑफ द पेपर। Each carbon that is tetrahedrally surrounded by the 4 bonds, so those tetrahedral structure doesn't allow cyclohexane molecule to be a planar molecule. Actually, it exists into 2 conformations. One conformation, it is in front of you, that seems just like a chair, so it is known as the chair conformation. क्या बोलते हैं इसको? चेयर की तरह दिख रही है तो उसको हम बोलते हैं चेयर कन्फर्मेशन। ये चेयर की बैक आ गई, ये चेयर की बीच में सीट आ गई और ये चेयर के लेग्स आ गए, तो इसको बोलते हैं हम चेयर कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन दिखने के लिए इस तरह की है, लेकिन इस कन्फर्मेशन में मैंने कहीं पर भी हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किया हुआ है। अगर आपने हाइड्रोजन ड्रॉ करने हो तो एक्चुअल में आपके पास ये कन्फर्मेशन इस तरह की नजर आएगी, इसको बोलेंगे हम चेयर कन्फर्मेशन। आई स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन एटम, दैट इज द फर्स्ट कार्बन एटम हियर। इस कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, एक हाइड्रोजन मैंने इस तरह से दी है। अगर आप केवल फर्स्ट ही कार्बन एटम को चेक करते हो तो इस कार्बन एटम पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नजर आ रही है। 1 बॉन्ड, इट इज सेकेंड बॉन्ड, इट इज थर्ड बॉन्ड, अपर वन इट इज द 4th बॉन्ड। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसी तरह की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सेकेंड कार्बन एटम पे, इसी तरह की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थर्ड कार्बन एटम पे, सेम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 4th कार्बन एटम पे, उसी तरह की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 5th कार्बन एटम पे, उसी तरह की 6th पे, और इस तरह से जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो इसको एक कन्फर्मेशन या सेफ पोजीशन में अलो करती है, और वो जो उसकी पोजीशन है उसको हम क्या बोलेंगे? चेयर पोजीशन या चेयर कन्फर्मेशन। क्या बोलेंगे उसको? चेयर कन्फर्मेशन। जिस तरह से उसके टेट्राहेड्रल बॉन्ड की 109.5 डिग्री का एंगल जो वो सुटेबल बैठता है, उसके अकॉर्डिंगली वो स्ट्रक्चर जो है पकड़ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। पकड़ किसको बोलते हैं? टेढ़ा मेढ़ा। तो स्ट्रक्चर जो पकड़ स्ट्रक्चर हो गई है, जिसकी वजह से इसमें कौन सी कन्फर्मेशन आ रही है? चेयर कन्फर्मेशन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो उसको इसी स्ट्रक्चर में अलो करती है। इस कन्फर्मेशन को बोलते हैं हम चेयर कन्फर्मेशन। ये कन्फर्मेशन बहुत ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन है। उसका एक रीजन है कि इस कन्फर्मेशन में अगर न्यूमैन प्रोजेक्शंस ड्रॉ की जाएं, मैं यहां नहीं ड्रॉ कर रहा हूं अभी तक, बाद में ड्रॉ करूंगा इनको आपके सामने, बाय हैंड आई विल ड्रॉ देम। तो जितने भी कार्बन एटम है, चाहे 1 से
2 कार्बन एटम है, इनके बीच में जो अगर देखा जाए तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। 2 to 3 अगर चेक करें तो भी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। 3 to 4 अगर चेक करें तो भी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। 4 to 5 चेक करें तो भी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। C5 से C6 चेक करें, ये भी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। C6 to C1 again it is a staggered confirmation. So all the confirmations whether C1 to C, C2, C2 to C3 इस तरह से C6 C1 तक सारी की सारी कंफर्मेशन इसमें जो वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। स्टैगर्ड कंफर्मेशन आपको मालूम है कि बिखरी हुई कंफर्मेशन होती है, और जहां बिखरी हुई कंफर्मेशन है उसमें एक एटम दूसरे एटम से काफी डिस्टेंस पे होता है, तो एक दूसरे को वो रिपेल नहीं करते हैं, तो जिस वजह से जो वो स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल रहती है। सो दिस इज ए चेयर कंफर्मेशन। उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसकी एक ही स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करती है, अनदर स्ट्रक्चर बोर्ड कंफर्मेशन आल्सो एग्जिस्ट। तो अगर इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जहां 1 2 3 4 5 6 लिख रखा है उसको अगर आप चेक करें तो वो एक नाव की तरह जो है या बोट की तरह जो है वो नजर आएगी। हर एक कार्बन एटम पे 2-2 हाइड्रोजन मैंने अटैच कर रखे हैं, तो 1 पे भी हैं, 2 पे भी हैं, 3 पे भी हैं, 4 पे भी हैं, 5 पे भी और 6 पे, हर एक कार्बन एटम पे जो है वो 2-2 हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड हैं। इस कंफर्मेशन और उस कंफर्मेशन में डिफरेंस क्या है? फिलहाल तो ये थोड़ी सी अनस्टेबल कंफर्मेशन है, क्योंकि इस कंफर्मेशन में आपके पास स्टैगर्ड प्रोजेक्शंस, न्यूमैन प्रोजेक्शंस नहीं आ रही हैं। कौन सी नहीं आ रही हैं? स्टैगर्ड नहीं आ रही हैं। कहां कहां नहीं आ रही हैं? C1 to C2 चेक करें तो ये स्टैगर्ड है। वेयर इज C1 to C2? इफ यू चेक इट, इट इज C1 कार्बन एटम और C2, तो दोनों के बीच में स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। C1 से लेके C6 तक ये भी स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, C1 to C6। C5 से C4 स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। C4 से C3 स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। पीछे 6 स्टैगर्ड कंफर्मेशन थी, हर एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ जो कंफर्मेशन आ रही थी वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन थी। यहां पर 1 की 2 के साथ, 1 की 6 के साथ, 4 की 5 के साथ और 4 की 3 के साथ जो वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। लेकिन अगर आप C2 to C3 चेक करें तो नीचे की तरफ हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, इसका मतलब यहां पर एक्लिप्स कंफर्मेशन आ रही है। उसी तरह से C6 और C5 के बीच में चेक करें तो ये कंफर्मेशन भी कैसी है? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन आ रही है। तो इसमें जो है 2 कंफर्मेशन आपके पास जो है बोट में एक्लिप्स कंफर्मेशन है, और 4 कंफर्मेशन C1 to C2, C6 to C1, C3 to C4 एंड C4 to C5 जो वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन आ रही हैं, और 2 कंफर्मेशन इसमें जो है C2 to C3 और C5 to C6 जो है एक्लिप्स कंफर्मेशन आ रही है। लेट अस चेक अगेन बट आई एम सेइंग, ये जो इसका टिप है, इससे नंबर ये वाला कार्बन एटम, इस टिप से इस वाला कार्बन एटम, इन तीनों के बीच में स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। ये वाला टिप है 4 नंबर पे, 4 का 5 के साथ रिलेशन, 4 का 3 के साथ रिलेशन, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है 2 to 3 एंड 6 to 5, ये कंफर्मेशन जो है वो आपके पास कैसी आ रही है? एक्लिप्स कंफर्मेशन। ऐसा नहीं है कि कार्बन एटम का जो नंबर दे रखा वो फिक्स है, जिसको मैंने 1 लिख दिया 1 होगा, जिसको 2 लिख दिया वो आपकी मर्जी है। आप जो है सेकंड कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप थर्ड कार्बन को 1 बोल सकते हैं, आप 5th कार्बन को 1 बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन ये जो ऊपर वाले हाइड्रोजन्स हैं या ये टिप वाले, ये एक कार्बन ये आ गया, एक कार्बन इस साइड आ गया, इन कार्बन के साथ नेक्स्ट जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन में है, लेकिन वो आगे आपस में जो है वो एक्लिप्स कंफर्मेशन में है। तो C1 से C6, C1 to C2 स्टैगर्ड, C4 to C5, C4 to C3 staggered, but 3 to 2 and 5 to 6 these are the eclipsed confirmation.
Since there are two eclipse conformations, so that structure is little bit unstable than the chair conformation. So chair conformation, it is a stable conformation than the boat conformation. Some interactions are there, but type of interaction if I study here, ये देखो 1 पे मैंने हाइड्रोजन ऊपर की तरफ शो किया है, ये हाइड्रोजन मैंने नीचे की तरफ नहीं बिल्कुल शो किया, लेकिन इन बिटवीन शो कर रखा है। जो एग्जैक्टली जो बाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, चाहे ये वाला आ गया, चाहे 2 टू डाउन आ गया, चाहे 6 टू डाउन आ गया, चाहे 3 टू अबव आ गया, 5 से अबव आ गया, या 4 से नीचे की तरफ आया, ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन की तरह आ रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं एक्सियल हाइड्रोजन्स। विच हाइड्रोजन्स? एक्सियल हाइड्रोजन बोलते हैं इनको। क्या बोलेंगे हम? एक्सियल हाइड्रोजन। सो व्हाट अबाउट दिस वन? ये जो हाइड्रोजन है दैट इज द एक्सियल, ये जो हाइड्रोजन है दैट इज द एक्सियल, दैट इज द एक्सियल, ये H एक्सियल है, ये H एक्सियल है, और ये नीचे अगर आप इसको देखते हैं यहां पर 4 से डाउन जो है दैट इज द एक्सियल। लेकिन जो हाइड्रोजन इन बिटवीन आ रही हैं, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से, मींस 4 पे ये वाली और 5 पे ये वाली, इनको बोलते हैं हम इक्विटोरियल। क्या बोलते हैं इनको? इक्विटोरियल। तो दो तरह की हाइड्रोजन्स होती हैं, एक जो बायएक्सिस के अलोंग आएंगी उनको हम बोलेंगे एक्सियल हाइड्रोजन्स, और जो इक्वेटर के यानी बीचों बीच आ रही हैं तो उसको हम बोल रहे हैं इक्विटोरियल हाइड्रोजन्स। क्या बोलते हैं उनको? इक्विटोरियल हाइड्रोजन्स। इफ यू अगेन चेक, फर्स्ट पे और थर्ड पे एक ही जैसी जो वो अरेंजमेंट है, यहां हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन बीच की तरफ, ये हाइड्रोजन अबव, ये हाइड्रोजन सेंटर की तरफ। तो फर्स्ट और थर्ड या थर्ड और फिफ्थ अल्टरनेट पे एक ही जैसा, एक को छोड़कर 1 2 छोड़ दो 3, 1 और 3 में एक जैसी आ गई, 3 के बाद 4 छोड़ दो 5, 3 और 5 में एक जैसी, 5 के बाद 6 छोड़ दो 1, 5 और 1 में एक ही जैसी जो वो अरेंजमेंट है। तो इनके हाइड्रोजन जो फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन है और जो थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन है, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दीज आर नोन एज द 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शंस। क्या बोलते हैं इनको? 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शंस। उसके बाद नीचे अगर देखो आप, ये बोर्ड कन्फर्मेशन थी, ये हाइड्रोजन एक और ये दूसरी हाइड्रोजन आपस में काफी नजदीक हैं, ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन को बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स। क्या बोलते हैं इनको? 1 कार्बन एटम और 4th कार्बन एटम पे दो हाइड्रोजन अंदर की तरफ आ रही हैं, उन हाइड्रोजन को बोलते हैं हम फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स बोलते हैं इनको, दीज 1 and 4। यहां नीचे मैंने कहा 2 से 3 में और 5 से 6 में आपके पास क्या है? कंफर्मेशन जो एक्लिप्स कंफर्मेशन है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये रिपेल करेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम इनको दूर ले जाएं और बोर्ड को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो आपके पास एक और कंफर्मेशन आती है जिसको बोलते हैं ट्विस्ट बोट। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, सेंटर से इसको टेढ़ा कर रखा है, तो इसमें 3 से एक हाइड्रोजन अवे हो गई और ये 6 पे भी हाइड्रोजन अवे हो गई, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन आपस में काफी क्लोज हो गई। तो वैसे तो ये बोलने के लिए है कि ये क्लोज हो गई और ये फार अवे चली गई, इनको इतना अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है बिकॉज इट इज ए 3 डायमेंशनल मॉडल। तो आप इसको ट्विस्ट करके थोड़ा सा 2 हाइड्रोजन को क्लोज बनाना है, 2 हाइड्रोजन को आपने डिस्टेंस पे बनाना है, तो उससे जो है वो आपके पास थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है, तो इसको बोलते हैं ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशंस। ये कन्फर्मेशन 3 डायमेंशनल मॉडल में है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको मैं इसका 3 डायमेंशनल मॉडल शो करूंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि किस तरह से कन्फर्मेशन जो है वो साइक्लोहेक्सेन की ड्रॉ की जा सकती हैं, और साथ में इसको मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी चेंज करना है। आई विल ड्रॉ बाय माई सेल्फ how to change them into the Newman projections. Okay, see you in the next lecture.